Hello students, today I will start colligative properties, which is one of the important topic of solutions class 12 physical chemistry. So basically what is colligative properties? So colligative is a Latin word whose meaning is co means together and ligar means bind. So together binds, that means when something binds together, then it is called colligative properties. So colligative properties are a set of four properties which are depends upon the number of moles of solid particles or amount of solid particles, not on the nature of that solute particles, right? So this is actual definitions of colligative properties. So I will see my notes. I have printed these notes for students. So see, solutions and colligative properties. So see the definitions, exactly same definitions I copied from NCERT textbook. All these properties depends on the number of solid particles irrespective of their nature relative to total number of particles present in solutions. Such properties are called colligative properties. So a set of four properties you can see in the diagram. These are the colligative properties, right? तो कौन कौन सा colligative properties है, तो चारों सेट्स में हम लोग देख सकते हैं. फर्स्ट colligative properties is freezing point depression, second is boiling point elevation, third is osmotic pressure, and fourth is vapor pressure lowering. So all these related to the solutes molecule, right? Not for solvents. So due to the solute present in the solutions, this properties takes place, right? मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ही फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, लोअरिंग, ये सब सॉल्वेंट्स का चेंज होता है, वेरी करता है. तो सॉल्यूट्स कैसा होना चाहिए? सो इट मस्ट बी सॉल्यूट्स नॉन वोलेटाइल लाइक सॉल्ट्स. नॉन वोलेटाइल मतलब जो इजीली वोलेटाइल नहीं हो, वाटर से बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो, लाइक NaCl, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर एट्सेट्रा. तो हम लोग आयनिक भी ले सकते हैं, कोवलेंट भी ले सकते हैं, नो इशू, बट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. और ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सक्सेसफुली वर्क करता है. सो सी दीज आर द सेट ऑफ फोर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट आई अरेंज्ड दिस in the sequence of NCERT order, because NCERT is the famous book for and guide book for class 12 students as well as many competitions also. So see, first that is relative lowering of vapor pressure, vapor pressure का घटना. second elevation in boiling points, मतलब boiling points का बढ़ना, clear. third is depression of freezing points. fourth is ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो एक एक करके हम लोग सारे का डिस्कस करेंगे, बट सबको जानने के पहले सबका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं. तो चारों का फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा. वेपर प्रेशर लोअरिंग P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01. हियर x1 इज द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1. तो याद रखना कंपोनेंट 1 हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं एंड कंपोनेंट 2 सॉल्यूट्स लेते हैं, क्लियर. तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सो डेल्टा टीवी इक्वल टू KB इंटू एम. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम. तो स्मॉल m दोनों मोलालिटी है, KB KF कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इवोलियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम होता है, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट. And the fourth is the osmotic pressure represented by pi. So osmotic pressure pi equal to MRT और CRT. तो C और M यहाँ मोलैरिटी को रिप्रेजेंट्स करता है, जो कंसंट्रेशंस का यूनिट, राइट. तो कंसंट्रेशंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं C या M फॉर मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन इक्वल टू भी वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स N2/B. तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर.
So for this I will copy the definitions of colligative properties and will paste in my virtual whiteboard. So I copied this and I will paste here so that it will complete the definitions. So this is the definitions I paste here from my notes. So all these properties depends on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties, right? तो फुल स्टॉप लगा देते हैं और हम लोग 4 सेट्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट सेट आज देखते हैं उसका डेरिवेशंस के साथ, सेकंड थर्ड फोर्थ को नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेकंड वीडियो में नेक्स्ट डे, राइट. सो सी द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure. So I will copy here the relative lowering of vapor pressure with their definitions. So this is so I copied this and I will paste here. थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया, इसको यहाँ से so this is the first one that is called relative lowering of vapor pressure. so ये तो वही आ रहा है, तो ये मतलब कॉपी नहीं हुआ, राइट. तो इसको हम लोग फिर से एंडो करके फिर से टेस्ट करते हैं. सो पेस्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इज समथिंग मिसिंग हो रहा है. एनीवे आई विल राइट विथ यूजिंग वर्चुअल पेन, राइट. सो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शॉर्टकट में वीपी लिखते हैं. तो वेपर प्रेशर्स का लोअरिंग कैसे होता है इसको हम लोग समझने के लिए एक डायग्राम को देखते हैं. सो सी अ डायग्राम. आई एम टेकिंग 2 बीकर नेमली ए एंड बी. तो 2 बीकर्स ले लिए. दिस इज बीकर ए, दिस इज बीकर बी.
बीकर ए कंटेंस प्योर वाटर, इसमें क्या है तो प्योर वाटर है, प्योर दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, एंड सेकेंड बीकर कंटेंस सॉल्ट वाटर सॉल्यूशंस। तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। अब दोनों को हम लोग स्टार्ट किए हीटिंग। तो ऑन हीटिंग वी सी द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर वाटर is 100 degree Celsius, but the boiling points of beaker B, that is the solutions, greater than pure solvents, so it is 100 plus degree Celsius। तो दोनों का यदि बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट्स है एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। और सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट्स है 100 प्लस, मतलब 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 100 प्लस डिग्री सेल्सियस। कितना है ये डिपेंड्स करता है सॉल्ट्स कितना एडेड है, राइट। सो ग्रेटर द अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशंस ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरह 100, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग सॉल्यूट्स नॉन वोलाटाइल ऐड करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट्स यहाँ नमक है और नमक यहाँ नॉन वोलाटाइल है, सो हियर NaCl इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स है तो क्या कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट्स को बढ़ा देगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। यदि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो देयर इज अ रिलेशन दैट बॉइलिंग पॉइंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, कंपोनेंट कंटेनर ए और कंटेनर बी में। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा है बी का, कंटेनर बी का। क्यों कंटेनर बी का ज़्यादा है, क्योंकि कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हम लोग उसमें ऐड किए हैं। तो बी का यदि ज़्यादा है इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा। सो ए हैज़ ग्रेटर वेपर प्रेशर, सो कंटेनर A has greater vapor pressure than that of B। तो ये रिजल्ट निकला। तो हम लोग रिप्रेजेंट्स करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स दैट इज P ऑफ सॉल्यूशंस या P1। तो प्योर सॉल्वेंट्स के लिए P1 है, क्योंकि ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स। तो कंपोनेंट 1 है, सॉल्वेंट्स के लिए हमेशा 1 लेते हैं, सॉलिड्स के लिए 2 लेते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स जो यहाँ वाटर है, एंड P0 ये P01 होगा जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स है, एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। राइट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट्स का ज़्यादा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स हो रहा था, एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट क्या था, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले हम लोग लिखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
तो लिख सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू, तो डेल्टा P मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 माइनस P1, राइट। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि P1 इक्वल टू डेल्टा P इक्वल टू दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग यहाँ P1 लिख देते हैं क्योंकि सॉल्वेंट्स जो मिला हुआ है उसके रिस्पेक्ट्स में हम लोग ले रहे हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स को हम लोग ऐसा लिख दिए। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। तो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया उसको हम लोग लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली P1 is directly proportional to mole fractions. P1 is directly proportional to x1। तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा करके लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P01 इंटू x1। सो दिस इज इक्वेशन 1। तो डेरिवेशंस के लिए हम लोग को इक्वेशन 1 इसको लेना पड़ेगा। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो ये तो राउल्ट्स लॉ से भी रिलेटेड है, तो राउल्ट्स लॉ से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली भी वही आया है जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डाइल्यूट सॉल्यूशंस का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि P1 का वैल्यू यदि इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वो इक्वेशन एक्सटेंड हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ this value of equation 2 in equation 1 we get, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, तो इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, सो दिस इज इक्वेशन 2 और 1 में हम लोग रख रहे हैं दिस इज इक्वेशन 1। तो 1 है डेल्टा P1 दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स माइनस P01। तो P01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 इंटू x1। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हम लोग P01 को कॉमन ले सकते हैं। सो 1 माइनस x1 बचेगा। अब हम लोग थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशंस करेंगे। वी नो दैट x1 प्लस x2 इक्वल टू यूनिटी। ये हम लोग क्लास 11 से जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा यूनिटी होता है। सो वी कैन राइट दैट x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ये तो हो सकता है और यहाँ इक्वेशंस में देख रहे हैं 1 माइनस x1 है। सो इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करेंगे। तो यदि ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं। सो इट विल बी डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2। अब P01 और डेल्टा P1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1
from equation 1 we have डेल्टा पी नॉट इक्वल टू, तो डेल्टा पी नॉट इक्वल टू हम लोग का जो वैल्यू वहाँ से आया है उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो डेल्टा पी वन इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या था, पी नॉट 1 माइनस पी वन इक्वल टू पी नॉट 1 इंटू एक्स टू। तो अब हम लोग x2 इक्वल टू यदि देखें तो x2 को इधर छोड़ दें तो p नॉट 1 माइनस पी वन अपॉन पी नॉट 1 इक्वल टू x2 आ जा रहा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ p नॉट 1 माइनस पी वन अपॉन पी नॉट 1 इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स। ये जो है दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। तो इसको क्या पढ़ना है हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अब x2 मतलब होता है मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स 2। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस x2 इक्वल टू क्या होता है, कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 तो n2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स तो n1 प्लस n2। अब n1 है सॉल्यूट्स n1 है सॉल्वेंट्स और n2 है सॉल्यूट। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस n2 इज़ वेरी वेरी लेस। हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस n2 इज़ वेरी वेरी लेस। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस n2 इज़ very very less than n1, so n2 can be neglected in denominator side। तो यदि उसको हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें से, तो इक्वेशन 3 में। सो पुटिंग दिस वैल्यू, इसको हम लोग लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन putting this value in equation 3 we get, तो हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 3 में x2 का वैल्यू ये रखेंगे। तो इक्वेशन 3 यहाँ है पी नॉट माइनस पी वन राइट अपॉन पी नॉट 1 इक्वल टू x2। तो x2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस फाइनल इक्वेशंस में। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशंस हो जाएगा। तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो दिस इज द वैल्यू दैट पी नॉट 1 माइनस पी वन अपॉन पी नॉट 1 इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन दिस इज इक्वेशन 4th एंड लास्ट में हम लोग इक्वेशन 5 निकाल लेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे। तो n2 और n1 का वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बी पी नॉट 1 माइनस P1 अपॉन
P01 इक्वल टू N2 का वैल्यू होता है W2/M2 और इंटू कर देते हैं तो W1/M1, तो M1/W1 कर दें, तो M1/W1 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन 5 एंड द रिक्वायर्ड डेरिवेशंस. तो ये हम लोग को रिक्वायर्ड डेरिवेशंस निकालना था जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. तो हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो फाइनल मेरे पास आया है. राइट. तो ये हम लोग डेरिवेशंस किए. अब हम लोग इसको एक छोटा सा वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो इसके लिए हम एक एनिमेशंस दिखाते हैं जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रन करेगी. सो सी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ in a short 3D animated video so that it can be easy to understand for all. ये थोड़ा स्लो रन कर रहा है. Observe these processes carefully. But it will Place some dried fruits and vegetables in water. They slowly swell up and return to their original form. When a raw mango is placed in concentrated salt solution, it loses water and shrivels into a pickle. Similarly, if we place wilted flowers in fresh water, they are revived. All these processes have one thing in common. There was a flow of water molecules either to or from the substance. Secondly, all the substances were bound by membranes. This phenomenon is called osmosis. Osmosis. So osmosis is an example of solvent molecules qualitative like properties water because osmosis depends upon can the pass total through the number holes of of these membranes. solute molecules. But bigger molecules, like the solute, are unable to pass through them. Such membranes, which are selectively permeable to only certain molecules, are known as semi-permeable membranes. तो इसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट्स को पास होने देता है, सॉलिड्स को पास नहीं होने देता बिकॉज सॉलिड्स आर बिगर इन साइज बट सॉल्वेंट्स आर स्मॉलर इन साइज. These membranes can be of natural origin or synthetic origin. Vegetable membranes, which are found just under the outer skin, like in the onion, तो ये membranes found under the shell of an egg, स्किन के फर्स्ट लेयर में भी है. एक a pig's bladder, लेयर or जो होता है वो भी parchment सेमी are परमेबल examples of natural membranes. parchment paper, While pig's bladder, cellophane these are the is an examples. example of synthetic membrane. सिंथेटिक में सेलोफेन्स आ जाता है, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है जो वाटर को Osmosis can be easily filter defined करवाएगा. as the spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution, or from a dilute solution to a concentrated solution. It From is lower important to concentration note to higher that concentration. osmosis drives solvent molecules through a semi-permeable membrane from low solute concentrations to high solute concentrations. Osmosis ends when the solute concentration becomes equal on either side of the membrane and equilibrium कि is कैसे attained. सॉल्यूट्स का मूवमेंट्स हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहा है, ये क्लियरली हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं इसमें. राइट. तो ये एनिमेशंस बहुत अच्छी तरीके से बता पाता है कि सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही पास होने देता है, सॉरी सिर्फ सॉल्वेंट्स को पास होने देता है, सॉल्यूट्स को नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट्स होता है जनरली वाटर लाइक एंड solutes are bigger in size, so solids cannot be passed, so solids are filtered.
तब यहाँ हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रेशर पढ़ेंगे जो स्टॉप करता है ऑस्मोसिस को, दैट इज कॉल्ड पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी बोलते हैं, राइट। To a solution सो ये to prevent एग्जांपल्स osmosis है from taking क्वालिटेटिव place. प्रॉपर्टीज का, जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग Osmotic रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर Like other प्रेशर्स का colligative डेरिवेशंस properties, ही किए, does not ठीक है। depend on the identity of the solute, but on its concentration. It has been found experimentally that osmotic pressure pi for dilute solutions is proportional to molarity C of the solution at a given temperature T. Thus, pi is equal to C multiplied by R multiplied by T, where R is the gas constant. If the solution contains N2 moles of solute in volume V, then C is equal to N2 divided by V. Therefore, pi is equal to N2 multiplied by R multiplied by T divided by V. If W2 grams of solute of molar mass N2, तो हम लोग देख सकते हैं N2 यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स है, बिकॉज कंपोनेंट 2 सॉल्यूट्स होता है, कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट्स होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये डेरिवेशंस हो गया पाई इक्वल टू CRT, CRT आ रहा है गैस कांस्टेंट है, C के वैल्यू हम लोग N2/V कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, W2 इज गिवन वेट, M2 इज मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनली इस तरह से, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू गिवन वेट दैट इज W2 इंटू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R इंटू टेम्परेचर T एंड M2 इंटू V। तो ये अपॉन में रहेगा। तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में, जो एक डेरिवेशन से यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल सकते हैं। और ये बेहतर मेथड है अदर मेथड से, बिकॉज इसमें मोलैलिटी का यूज़ नहीं होकर के मोलैरिटी का यूज़ किया गया है। सो पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोसेस में से एक माना जाता है, राइट। सो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशंस करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसका अप्लीकेशंस है। बायोलॉजिकली ये काफ़ी हाई लेवल में इसका स्टडी किया जाता है, जनरली मेडिसिन्स एंड फार्मा केमिस्ट्री, फार्मेसी, बी फार्मा एंड एम फार्मा, वो सब में इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर जो 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आज छूट गया, क्योंकि 2 और फर्स्ट और लास्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड और थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, दोनों एक ही तरह का है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू।